हाँ जी, आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करूँगी अबाउट बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 इन राइटिंग टास्क 2। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਈਦਰ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਵਿਦ ਥੀਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ, ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥੀਸ ਸੈਕਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ अपने पैराग्राफ दा, then supporting sentence, then example, and at the end we have ending sentence of our body paragraph। हाँ जी, सो अगे मूव होने तो पहला मैं तुहानू ये दस देना चाहनी हाँ कि ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੋ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡ। ਨੋ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, then of course you can get more than 7 bands, because I got more than 7 by just explaining one idea in 1 BP। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ 2 ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖੋ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਅ ਲੋਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਬਿਗ ਸੈਲਰੀ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਸਮ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੈਨ ਜੌਬ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਾ। ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਡਿਸਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, सो जो मैं तुहानू हुण स्टेटमेंट दसी है, मैं अपना ओपीनियन उस स्टेटमेंट दे नाल डिसअगरी करदी हाँ, मैं उस स्टेटमेंट नाल डिसअगरी करदी हाँ। सो मैं ਉਹਦੇ ਲਈ इंट्रोडक्शन ਵਿੱਚ लाइन लिखूँगी दैट आई डिसअगरी विद द स्टेटमेंट। नॉर्मल पीपल यही लाइन लिखणगे इन द इंट्रोडक्शन। जिवें कि मैं अपनी लास्ट वीडियो ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ दैट हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। यू कैन चेक इट आउट, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ दैट इंट्रोडक्शन ਵਿੱਚ मैं लिखूँगी आई डिसअगरी विद द स्टेटमेंट। मैं किद्दां इनू भी इफेक्टिव बना सकती हाँ, इज़ आई एम इन कंज्यूमेट डिस्कॉर्ड विद दिस नोशन। कंज्यूमेट डिस्कॉर्ड का मतलब है जी डिसअगरी, मीनस उस स्टेटमेंट के खिलाफ होना, एंड नोशन का मतलब है जी स्टेटमेंट। सो इदा मैं अपनी इंट्रोडक्शन विच ही एक इफेक्टिवनैस लिया सकती हाँ एंड अपने एग्जामिनर ते एक अच्छा इंप्रैशन पा सकती हाँ इन द वेरी स्टार्ट ऑफ माई टास्क, एंड इहदे नाल तुहाडे बैंड्स का इनक्रीज होना तो श्योर है। हाँ जी, सो अपने बॉडी पैराग्राफ 1 का फर्स्ट सैक्शन, नॉट ओनली बॉडी पैराग्राफ 1 ऑल्सो 2 द फर्स्ट सैक्शन होगा ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस का मतलब है स्टार्ट योर सेंटेंस विद योर मेन आइडिया। इट मीनस तुसी अपने बॉडी पैराग्राफ के स्टार्टिंग विच ही इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस तुसी अपना मेन आइडिया एग्जामिनर नू एक्सप्लेन करोगे, उन्होंने दसोगे कि तुसी एक्चुअली इन होल पैराग्राफ की दसना चाहते हो। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये बिलीव करते हैं कि जिन्नी ज़्यादा इंग्लिश लिखांगे उन्ने ज़्यादा बैंड स्कोर्स होंगे। नो, जिन्नी तुसी क्लीयर एक्सप्लेनेशन दोगे अपने व्यू पॉइंट दी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ टास्क रीड करना शुरू करूँगा तो उन्होंने स्टार्टिंग वेरी फस्ट सेंटेंस तो ही पता लग जू कि मैं अगे की पढ़ना चाह रहा या फिर मैं अगे की देखना आ इंग्लिश के विच ये बंदा मैनू की समझाउण जा रहा आ। सो ट्राई करा करो अपने टास्क के पहले ही सेंटेंस विच अपना मेन आइडिया क्लीयर कर दो। जिवें कि इत्थे मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल भी दित्ती है कि तुसीं किस अपने बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग किद्दां कर सकते हो। एक अच्छे सेंटेंस दे नाल तुसीं स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
द प्रीडोमिनेंट जस्टिफिकेशन टू सपोर्ट माई व्यू पॉइंट इज़ दैट जो ये सेंटेंस है ना, ये तुसी किसी भी ऐसे दे विच अपनी बॉडी पैराग्राफ 1 दे विच लिख सकते हो ते अपनी बॉडी पैराग्राफ 1 नूं एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हो. सो यस, जॉब सैटिस्फैक्शन गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट टू पीपल. जिमें कि मैं तुहानू कहा कि मैं अपना मेन आइडिया पहली ही लाइन में दस दूंगी. मैं इत्थे दसता कि यस, जे बंदा जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, उन्होंने इंपॉर्टेंस दिंदा आ, तो उन्होंने एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मिलती आ. इत्थे फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मेरे टास्क का मेन आइडिया आ जो मैं BP1 दे विच अगे जाके एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं अपना मेन आइडिया हुणे ही दस चुकी हाँ. हाँ जी, ओपनिंग सेंटेंस जो मेरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, देन मैं स्टार्ट करूँगी सपोर्टिंग सेंटेंस. सपोर्टिंग सेंटेंस का मतलब है एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आइडिया. जो मैं इत्थे फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट ये जो आइडिया दिता है, हुण मैं इनू अपने वर्ड्स दे विच एक्सप्लेन करूँगी. आई हैव रिटन हेयर कीप योर आइडिया क्लीयर टू द एग्जामिनर. इट मीनस कि फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट तो मैं कहना की चाहनी हाँ, वो तुसीं सपोर्टिंग सेंटेंसिस मीनस ये 2 ਤੋਂ 3 सेंटेंस तुसीं लिख सकते हो अपनी पैराग्राफ की लेंथ के हिसाब नाल. 3 सेंटेंस इनफ ने आई गैस, जिहदे विच तुसीं उस बंदे नूं एक्सप्लेन करना आ कि वट डज दिस फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट मीनस. इस नाल तुहाडा की होएगा, ईजी हो जाएगा तुहाडा BP नूं फॉर्मेशन देना, है ना. तुहानूं पता लग गया कि यस फर्स्ट सेंटेंस में की लिखना आ, देन उस तो बाद 3 सेंटेंस में की लिखने ने. इहदे नाल तुहाडे BP की लेंथ तुहानूं ईजी हो जूगी मेजर करनी कि मैं किन्ना क लिखना आ, ते तुहाडे आइडिया नूं फॉर्मैट देना तुहाडे लई ईजी हो जूगा. हाँ जी, सो आफ्टर द ओपनिंग सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंस थर्ड होएगा जी एग्जाम्पल. जिमें कि ओपनिंग विच एक सेंटेंस हो गया, सपोर्टिंग दे विच 3 सेंटेंस हो गए, देन मैं एग्जाम्पल दूंगी. एग्जाम्पल का मीनिंग की है, इट गिव्स मोर क्लैरिटी अबाउट योर आइडिया. मैं मेन फोकस ये कर रही हूँ कि एक आइडिया एक्सप्लेन करो, बट उन्होंने इन्नी चंगी तरह एक्सप्लेन करो ना कि तुहाडे एग्जामिनर नूं दोबारा वापस ना पढ़ना पवे कि ओ वॉट इस पर्सन ने लिखिया की आ. तुसीं उस पर्सन नूं अगे तो अगे नहीं क्लैरिटी दिंदी जाओ. जिवें कि तुसीं आइडिया दिता, सपोर्टिंग विच उहनूं होर एक्सप्लेन किया, हुण एग्जाम्पल विच आपां उस ही आइडिया नूं होर ज़्यादा एक्सप्लेन करांगे. आई हैव रिटन हेयर कि इट कैन बी रियल और इमेजिनरी. एग्जाम्पल रियल, जो तुहानूं ना अपने टॉपिक बारे कोई एग्जाम्पल याद आ रही है कि नहीं मैं ये चीज़ न्यूज़पेपर च पढ़ी सी, तो तुसीं वो एग्जाम्पल लिख दो. जे तुहानूं कोई रियल याद आउंदी है, बट यस जे तुहाडी इमेजिनरी पावर अच्छी आ, तो कोई भी इमेजिनरी एग्जाम्पल अपने माइंड च लिख दो. तुसीं लिख सकते हो अपने माइंड तो, जिमें कि लाइक आई हैव रेड देयर के मान लो कि मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ किसी चीज़ बारे, है ना, कि मैं न्यूज़पेपर च रीड किया कि इत्थे इन्ने लोगों का इस चीज़ नाल अफेक्ट होया सी, और वॉट एवर द थिंग इज़, है ना. तुसीं इमेजिनरी एग्जाम्पल लिख सकते हो या फिर रियल, बट ये एग्जाम्पल की करूगी तुहाडे मेन आइडिया नूं होर चंगी तरह एक्सप्लेन करन दे विच हेल्प करूगी. 2 to 3 सेंटेंसिस तुसीं अपने एग्जाम्पल लिख सकते हो, जिहदे नाल तुहाडी BP की एक अच्छी लेंथ हो जाएगी. हाँ जी, सो आफ्टर द एग्जाम्पल वी हैव एंडिंग सेंटेंस. इन्नी अच्छी एक्सप्लेनेशन देने तो बाद ऑफ कोर्स एक सोहना जिहा एंड देना भी बनता है अपने BP नूं. गिव एन एंड टू योर BP. अपने BP नूं एक एंड जरूर दो. ए काइंड ऑफ ब्रीफ समरी ऑफ योर होल BP इन वन सिंगल लाइन. किसी एक सेंटेंस दे विच लाइक जिन्ना तुसीं उपर लिखिया आ, एक सिंगल सेंटेंस दे विच बाद विच एक उन्होंने ब्यूटीफुल जो एंड भी दे दो, ताकि एग्जामिनर नूं क्लीयर हो दैट येस फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड नाउ इट्स एंडिंग, राइट. सो अपने BP नूं कदे भी इनकम्प्लीट ना छड्डो, ठीक है. तो मैं इत्थे एक एग्जाम्पल भी दी है कि तुसीं अपने एंडिंग सेंटेंस नूं किदां स्टार्ट कर सकते हो. देयरफॉर, दस, हैंस, देन्स. मतलब इहदे नाल की होएगा कि हाँ जी आफ्टर दैट कि ये मेन लाइन है कि जो मैं ऊपर समझाया आ, ये उहदी एक ब्रीफ जी एक सिंगल लाइन दे विच समरी है. इहदे नाल की होएगा तुहाडे BP नूं एक ब्यूटीफुल जिहा एंड मिल जाएगा. हाँ जी, सो जिमें कि मैं तुहानूं BP1 एक्सप्लेन किया है विद दोज 4 सैक्शनस, उवें ही BP2 है. ये भी आप 4 ही सैक्शन फॉलो करांगे. जिमें कि पहला आप BP2 में एक स्टार्टिंग देवांगे, दैन वो बाद आप सपोर्टिंग सेंटेंस देवांगे, उस तो बाद एग्जाम्पल एंड दैन एंडिंग सेंटेंस. जिमें कि मैं तुहानूं पहला भी दस्सिया है कि BP1 विच भी मैं एक ही आइडिया एक्सप्लेन करूँगी, एंड उस तो बाद BP2 विच भी मैं एक सिंगल आइडिया ही एक्सप्लेन करूँगी. BP2 में तुसीं स्टार्ट कर सकते हो मूविंग फर्दर या फर्दर मोर यूज़ करके. मैं एक टिप जरूर दूँगी कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करन दी या फिर याद करन दी ज़रूरत नहीं है, राइट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुसीं एक सिंगल ऐसे लिख के आना है इन द फाइनल एग्जाम, है ना. जे मैं अज ये लाइक रिमैंबर करदी हाँ या फिर मैं याद करदी कि यस मूविंग फर्दर एक परफेक्ट जिहा वर्ड है मेरे BP2 नूं स्टार्टिंग देने लई, तो मैं हर एक ऐसे विच यूज़ करना शुरू कर दूँगी मूविंग फर्दर. इहदे नाल की होगा तुहानूं ये चीज़ याद भी हो जाएगी, एंड एट द एंड ऑफ द डे एक
ਸਿੰਗਲ ਟਾਸਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਐਸੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲਾਈਕ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ BP1 ਐਂਡ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ BP2 ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੇਪ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਲ ਦੀਜ਼ ਸਟੈਪਸ, ਲਾਈਕ ਵਟ ਐਵਰ ਮਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਟਫ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।